سر کہیے گا آئس کوئن کے نام سے انمول عرف پنکی لاہور سے پکڑی جاتی ہے، وہ کراچی کیسے پہنچتی ہے اور اس کا یہ اتنا وسیع پیمانے پر نیٹ ورک کیسے بالکل کنزا، یہ بہت ہی بڑی ڈرگ ڈیلر ہے، اور آج ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ پہلے ہینڈلر تھی منشیات فروشوں کی کراچی میں. یہ خود چھوٹی چھوٹی ڈانس پارٹیز میں جا کر تو یہ اس کے ذریعے کوکین بکوائی جاتی تھی. اس نے یہ کاروبار کب شروع کیا یہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ یہ 2 مقدمات میں، کراچی کے 2 مقدمات میں یہ اشتہاری ہو چکی تھی، جبکہ ٹوٹل اس پہ 10 مقدمے درج ہیں، اور جو اشتہاری ہے اینٹی نارکوٹیکس کے 2 مقدمے درج ہیں آلریڈی. تو یہ اینٹی نارکوٹیکس اور ایک حساس ادارے کی سپورٹ سے انہوں نے ہی لوکیٹر کے ذریعے اس کو ٹریس کیا. لاہور نواب ٹاؤن کے علاقے سے اس کو حراست میں لیا گیا، اور چونکہ یہاں پر اس کا کوئی مقدمہ درج نہیں تھا اس لیے اینٹی نارکوٹیکس والے جو ہیں اس کو کراچی لے گئے. اور آج جو فوٹیج بھی سامنے آئی ہے کہ کراچی کا جو فلیٹ دکھایا گیا کہ جہاں سے وہ اس کو حراست میں لیا گیا ہے، اب اگر ایف آئی آر دیکھی جائے تو وہاں پر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے یہ پکڑی گئی ہے، تو وہاں پر جو خاتون رہائش پذیر ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں 16 سال سے یہاں پر رہ رہی ہوں اور میں پنکی کو نہیں جانتی. تو یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس طرح ہوتا ہے. اگر وہ لاہور سے پکڑی گئی کراچی لے جایا گیا تو پھر اس طرح کا کوئی نہ کوئی وقوع بنایا جاتا ہے. اب اس کو جو آئس کوئن ہے اس کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، جیل بھجوا دیا گیا ہے. اس نے 2008 میں، آج سے 18 سال پہلے اس نے منشیات فروشی کراچی میں شروع کی. اور یہ ڈانس پارٹیز وہاں پہ جو ہوتی تھیں کلفٹن اور گردنوا میں، وہاں پر اس کے ذریعے جو اس دور کے بڑے منشیات فروش تھے وہ اس کے ذریعے کوکین بھجوایا کرتے تھے. جو جسے ڈرگ ہینڈلر کہا جاتا تھا پنکی، 2 سال تک یہ ان محافل میں اور کچھ سٹوڈنٹس کو وہاں پر یہ منشیات فروشی کرتی رہی. اس کے بعد اس نے 2010 میں یہ سوچا کہ اگر میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے تو میں یہ کام خود شروع کر دیتی ہوں. پھر ملائیشیا کا ایک نوجوان تھا جس کے ساتھ اس نے شادی بھی کی، تو اسی اس کے خاوند نے اس کو کوکین بنانی سکھائی. 2-3 طرح کے ایسے کیمیکل اس نے بتائے کہ جب اس طرح مکس کر کے، یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ اتنی مقدار ہوگی تو کتنا نشہ ہوگا، اتنی ہوگی تو زیادہ ہوگا، اتنی ہوگی، یعنی یہ ماہر ہو گئی، کوکین انجینئر بن گئی. اچھا سر، پہلے کہا گیا کہ اس پہ لاہور میں کوئی مقدمہ درج نہیں، پھر تفتیش میں سامنے آیا کہ 73/22 تھانہ کوٹ لکھپت میں اس پر مقدمات درج ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے؟ کنزا بالکل یہ ایک نیوز ہی یہ مقدمہ سامنے لے کر آیا ہے. ابھی تک جو تفتیش ہو رہی تھی اس میں تو یہی کہا جا رہا تھا، بلکہ لاہور پولیس نے بھی یہ کہا کہ جی لاہور میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے بھی ریسرچ بیس کویسچن کی ہے 73/22 مقدمہ نمبر ہے، اب اس کی ذرا تفصیل سن لیں کہ وہ مقدمہ ہے کیا. یہ تینوں بہن بھائی، پنکی، آئس کوئن جو ہے اور اس کے 2 بھائی ہیں، یہ لاہور جنرل ہسپتال کے قریب ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پر کرائے پہ رہائش پذیر سے تھانہ کوٹ لکھپت کی جورسڈکشن میں. پولیس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہ دونوں بھائی بہن ایک قیمتی گاڑی پہ منشیات لے کر جا رہے ہیں. تو تھانہ کوٹ لکھپت کا ایک ایس آئی ہے ساجد حسین، وہ ٹیم کے ہمراہ جب موقع پہ فوری پہنچتے ہیں تو وہ اس کے بھائی کو، یہ جو آئس کوئن ہے اس کے بھائی کو وہ حراست میں لے لیتا ہے اور اس سے منشیات بھی برآمد کر لیتا ہے. تو یہ جو مقدمہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں 73/22، یہ 6 جنوری 2022 کی بات ہے. یعنی کہ پولیس کہہ رہی ہے جی پرچہ ہے ہی کوئی نہیں، لیکن 4 سال پہلے لاہور کوٹ لکھپت میں یہ مقدمہ درج ہوا، اور اس میں جو تحریر ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جب اس کے بھائی سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میری بہن پنکی، آئس کوئن جو ہے، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی. اور یہ اسی ایف آئی آر کی تحریر کے مطابق اس میں یہ لکھا کہ اس نے پولیس والوں کو کچلنے کی کوشش کی اپنی گاڑی کے نیچے اور وہ فرار ہو گئی. اب اس کے بھائی کو گرفتار کر کے یہ مقدمہ اس کے بھائی پہ درج کیا گیا، جس سے برآمد ہوئی منشیات 1.5 کلو اور اس کو جیل بھجوایا گیا. لیکن یہاں یہ اتنی اہم بات ہے کہ جو خاتون
अपनी गाड़ी पे पुलिस एहलकारों को कुचलने की कोशिश करके भाग रही है, वो 4 सालों में गिरफ्तार ही नहीं हुई और ना ही सीआरओ में उसका रिकॉर्ड है। तो फिर वो इतनी बात है, जिस तरह हमारे ब्यूरो चीफ कराची जो है उन्होंने बताया तफ्तीश के हवाले से कि 9 करोड़ रुपए की तो ऑफर तफ्तीशी को कर दी गई अभी तक। जो दुबई से उनके एक चाहने वाले हैं वो आइस क्वीन के, जो वहां पे वो भी शायद आइस किंग होंगे, जो फौरी तौर पर 9 करोड़ रुपए की ऑफर कर रहे हैं कि आप इसको ज्यादा तफ्तीश ना करें, उसको जुडिशियल कर दें, इसको मजीद पर्चों में ना दें। आज उसका 3 रोजा रिमांड एक अदालत ने मंजूर कर लिया है। जिस तरह पहले उसको जुडिशियल कर दिया गया था, अब उसका 3 रोजा रिमांड भी मंजूर हुआ है। अब वो भी पुलिस उसको जेल से निकलवा कर तो तफ्तीश करेगी। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो कि इसमें जो बहुत सी चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही है, अब जो आला सतह पर इंक्वायरी शुरू हुई है, बल्कि इंतहाई मौत पर जराए ने तो ये भी कहा है कि जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्होंने भी इनिशिएटिव ले लिया कि बिल्कुल जो है वो इस तरह का जो काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और सर कानून से ज्यादा पावरफुल रही है और इस केस में कोई एक क्वीन नहीं और भी क्वींस हैं। तफ्तीश में ये सामने आया कि डिलीवरी के लिए वो गर्ल्स को इस्तेमाल करती थी, मतलब मजीद खवातीन उसने डिलीवरी के लिए रखी हुई थी। इसकी क्या वजह? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं किंजा। जिस तरह हमने एक पॉडकास्ट में बताया था कि लाहौर में भी जो आइस बिक रही है उसमें लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो लड़कियों को इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि उनके पास स्कूटी है और वो जा रही हैं, और मोस्टली पुलिस वाले जो हैं वो किसी लड़की पे, किसी बच्ची पे, किसी टीनेजर लड़की पे वो उसको नहीं रोकते कि इसके पास तो मंशियात नहीं होगी अगर नाका लगा भी हुआ है। तो ये जो ड्रग डीलर हैं बड़े, इस तरह के जो आइस क्वींस और आइस किंग हैं, उन्होंने ये बच्चियों को भी इस काम पे लगाया हुआ है। जिस तरह 2800 के करीब बच्चे, बच्चियां, नौजवान, लड़के, औरतें, बूढ़े सब इसके गैंग में शामिल हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के जरिए ये बड़ी पूरे पाकिस्तान में मंशियात फरोशी कर रही थी। लाहौर में किराए के घर में मौजूद होने के बावजूद ये पूरे पाकिस्तान में इसका नेटवर्क काम कर रहा था। तो ये अरसा दराज बाद हाथ आई है, और वो भी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने और हिसास इदारे ने इसका व्हाट्सएप ऑन होने पर ये अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही थी। और ये जो दावे कर रही है ना कि मुझे 10 साल से कोई पकड़ नहीं सका, ये सिम इस्तेमाल नहीं करती थी। इसके जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं, वो जो बच्चियां जिनका आप भी जिक्र कर रही हैं, जिनको ये इस्तेमाल कर रही है, उनके साथ ये उसी तरह व्हाट्सएप एक ग्रुप था इनका जिसमें सिम इस्तेमाल नहीं हो रही थी। लेकिन अब शायद उसको ये पता नहीं था कि हमारे हिसासदारों के पास ऐसी भी फ्रीक्वेंसी आ गई है कि आप व्हाट्सएप भी ऑन करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। अच्छा जरूर सर, पकड़े एक और जाएंगे। ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, इस ऑडियो से पता चलता है कि उसे पहले से इल्म था कि उसके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है और वो पकड़ी जाएगी। और उस ऑडियो में इसने कहा है कि पहले से ही कोई जो उसका मेल फ्रेंड है वो उसकी जगह पर अब काम करेगा, मतलब वो पहले से ही अपने जानशीन मुकर्रर कर चुकी है। देखें किंजा, ये जिस तरह से काम कर रही थी ना, ये इस तरह से आपने फिल्मों में देखा होगा, सी कंपनी, डी कंपनी, तो 3-4 हजार बंदा तो दाऊद इब्राहिम के लिए काम नहीं कर रहा था। लेकिन जो आइस क्वीन है उसके साथ कई आइस किंग हैं, उसने अपनी कंपनी बनाई हुई थी। जो मौका से कराची के फ्लैट से चीजें बरामद हुई हैं, वहां पे जो बॉक्स मिले हैं उसके ऊपर उसने अपना नाम लिखवाया हुआ था। इतने धड़ल्ले से आइस फरोशी मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने पहले की है, वो छुप छुपा के मिल मिला के। लेकिन जो उसका स्टाइल, उसका अदालत में पेश होने का अंदाज, उसकी गुफ्तगू, उसकी जो रिकॉर्डिंग सामने आई है, उससे ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अया है कि इसकी जो सरपरस्ती करने वाले हैं वो बहुत ही बासर अफराद हैं। और अल्लाह करे कि अब जिस तरह से आला सतह कमेटी बनाई गई है उन सब के जो पर्दा नशीन है उन सब के नाम सामने लेकर आए। जिस तरह तफ्तीश में ये भी बात सामने आई है कि पाकिस्तान के 15 शहरों में उसने घर बना रखे हैं, कई जगह पे रेंटेड हैं, और ये पकड़ी नहीं गई कि आज लाहौर है और शाम को वो कराची है। मैं ये चाहता हूं कि नाजरीन सबसे पहले इसकी वो गुफ्तगू सुन लें जो ऑडियो इसने खुद भिजवाई, तो उसमें ये पुलिस वालों के बारे में क्या कह रही है। तो सबसे पहले नाजरीन को वो ऑडियो सुनवाते हैं, फिर बात करते हैं। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए में से ही सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से आप लोग मरवा रहे हो 15 साल से मैंने तुम लोगों की हैवी मारी हुई है।
अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल, रिटायर हो जाते हैं मैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी, तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। आप लोगों की अकल ही असल में के बीच में, तुम लोग इसीलिए वहीं से सोचना शुरू करते हो। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे, दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ठीक है, ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं किया करे, ये बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें कर रहे थे। और हाँ, सन्नी भी मेरे पास ही है और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे, उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, रोक सको तो रोक लो। आपको बात करने से पहले ऊपर देख तो लेना चाहिए था, मैंने डॉन लिखा हुआ है। समझ नहीं आया, मतलब इतने समझदार हो गए फिर फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे थे मेरे साथ। नाज़रीन, ये ऑडियो लीक आपने सुनी। इस ऑडियो लीक में वो बड़े धड़ल्ले से कहती है कि मुझे रोक सको तो रोक लो। कोई आज तक मुझे रोकने वाला या पकड़ने वाला पैदा ही नहीं हुआ। 8-10 साल से आते हैं पुलिस वाले और मुझे पकड़ने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें ही रह जाती हैं। लेकिन अब वो पुलिस की हिरासत में है और पकड़ी गई है। शहराज साहब, ये भी कहिएगा, जब उसको अदालत में पेश किया गया तो वो तब भी बड़े धड़ल्ले से और बड़े दबंग स्टाइल में अदालत में पेश होती है, और ना तो उसको कोई हथकड़ी लगी होती है, ना कोई उसके साथ पुलिस वाले ज़्यादा होते। एक पुलिस वाला गालिबन उसे लेकर अदालत में पेश होता है। तो इस पर कोई कार्रवाई की गई है? किंजा, बिल्कुल ये कार्रवाई बराए नाम कार्रवाई होती है। इस तरह की कार्रवाई, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक वाकया कोड कर देता हूँ जी। कि ये इतना कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे बिल्ड होता है। लाहौर में एक एसएसपी थे, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, चौधरी शफकात। उन्हें एक मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार करवाना था आज़ाद कश्मीर से। तो उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जो बहुत ही मंजूर नज़र था। उसको कहा कि क्या आप उस मैजिस्ट्रेट को आज़ाद कश्मीर से लाहौर ला सकते हो। तो जब सब इंस्पेक्टर को ये पता चला ना कि मुझे एसएसपी कह रहा है, हाँ जी। उसने कहा सर गाली कोई नहीं। वो अपने चंद अफराद के साथ आज़ाद कश्मीर गया और वहां पर हाजिर सर्विस जो मैजिस्ट्रेट था जी। उसके मुंह पे रुमाल बांध के उसको ट्रक में डाल के लाहौर ले आए। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि जिस तरह वो अदालत में पेश हुई है, हाँ जी। तो वो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी मंशियात फरोश है। अमूमन तो और ऐसे मुलजमों को चेहरा ढक के देखें, और हथकड़ी ये के बिल्कुल साथ पेश आपने किया लॉ जाता की बात की है कि कानून ये कहता है कि आप किसी भी मुलजम को जब अदालत में पेश करते हैं, इस तरह के खासकर डाकुओं को, मंशियात फरोशों को, एक तो उन्हें हथकड़ी लगी होनी चाहिए और दूसरा उनका चेहरा जो है वो ढांपा। और खास कर जो खातून है, जी। लेकिन वो चेहरा क्या ढांपना था, तो बगैर दुपट्टे तो वो इस तरह फेर रही थी और जिस तरह वो अपने बाग च टहल रही है। और जो सब इंस्पेक्टर साहब नजर आ रहा है वो साथ साथ चलता हुआ, तो वो कह रहे मैडम इधर आए, इधर तशरीफ लाएं। जी। तो जो ऑडियो नाजरीन ने सुनी है उससे उसका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि वो जिस लेवल पे मंशियात फरोशी करती रही है, बहुत से लोग उसको बचाते रहे हैं।